Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Davis Tawheed and I am the Deputy General Secretary of Sindh Educational Organization. First of all, I welcome you all here in the online awareness session on the scholarship opportunities in South Korea. In today's session, our guest speaker will be having the session on the scholarship opportunities in South Korea. He will be telling about all the procedure, admission procedure, living style in Korea, and all of the detail related to that scholarships available in South Korea. So let me introduce the today's guest speaker, who is Dr. Fidaus Mehman, who is having his PhD in South Korea, and he is also working as associate professor in Sakkara IB University. So now without having any, we will be heading over to Professor Dr. Fidaus Mehman for further proceedings. So over to you, sir. Thank you very much, Awais, and I welcome all of you guys, and thank you for taking me on board. And this is my great honor to be as a speaker to provide some motivation and some useful knowledge to students who are planning to come for PhD and masters to South Korea. So I welcome you all on the board, and this session would not be so long. It is very easy and straightforward. And I hope that, first of all, let me know, would it be easy for all of you guys that I can conduct in English, Urdu, or Sindhi? So any medium of your own means that you could understand very well, then I can choose that medium. Please let me know first that I should continue in Sindhi, Urdu, or in English. Is it okay in Urdu? Because all the guys could understand easily, I think. I think we have to use Urdu for this. Okay. So I will be switching, huh? I will be switching between the mediums. Okay. Yeah, yes. Okay, let us start. Study in South Korea, first of all, masters and PhD. These are two, obviously, the upcoming degrees after you are doing the bachelor's in your own university at Pakistan or Sindh. Then obviously we are not only South Korea, but we are going to look forward for the rest of the countries as well, like Europe, UK, USA, Canada, Australia. Some of them are English-speaking countries, and other are non-English-speaking countries. So unfortunately, South Korea comes in non-English-speaking countries. इसमें आपको ये मसला होता है कि पहले लैंग्वेज का इशू है, यहाँ पे बैरियर है, लेकिन लैंग्वेज के बैरियर की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि साउथ कोरिया हम ना जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मोटिवेशन दूंगा सबको कि आप लैंग्वेज की वजह से जहन में ये ना रखें कि साउथ कोरिया अच्छा नहीं है या हम वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। दैट इज नॉट द केस। और आप आ सकते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया में, जो भी आपकी मतलब नेटिव लैंग्वेज है या जिस लैंग्वेज में भी आपने अपना स्टडीज कंटिन्यू की हैं अप टू इंटरमीडिएट, अप टू योर बैचलर्स। तो साउथ कोरिया दो कि इट इज नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बट इट इज गुड टू स्टडी देयर, राइट? सो साउथ कोरिया के अंदर सबसे पहले तो जो एक इनका मास्टर प्लान होता है वो है GKS फॉर प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप राउंड द ग्लोब। वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, इंडियंस भी आते हैं और नेपाल के भी आते हैं, बांग्लादेश के भी आते हैं, श्रीलंकन भी हैं, राइट? और यूरोप, UK, USA वहां से भी आते हैं। तो दो तरीके होते हैं कोरिया आने के लिए। एक इनका गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है जो कि GKS है, जिसको हम KGSP भी कहते हैं। लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट द CSE प्रोग्राम इन चाइना, राइट? तो इनका भी ये GKS का सेम प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कम से कम, तो आप मास्टर्स के लिए आ सकते हो, ठीक है? एंड देन आप डॉक्टरल डिग्री के लिए भी आ सकते हो, और स्पेसिफिक एक रिसर्च प्रोग्राम होता है उसके लिए भी आ सकते हो। तो मास्टर्स के लिए बैचलर्स चाहिए, जिसमें आपने 1 साल की कोरियन पढ़नी होती है और 2 साल की डिग्री प्रोग्राम होता है। एक बात यहाँ पे वाजे कर दूं कि GKS प्रोग्राम में आपको बाय आइदर मीन रिसर्च वाले फेज को छोड़ के बाकी दोनों प्रोग्राम्स में आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और वो 1 साल की ड्यूरेशन होती है। और उसके लिए जहां पे मैं पढ़ता हूँ, JD
यूनिवर्सिटी में, बल्कि मैं तो पढ़ चुका हूँ यहाँ पे। तो ये एक ऐसे समझ लें कि लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंग्विस्टिक का जो प्रोग्राम है ना यहाँ पे, वो ओवरऑल कोरिया में बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पे जो भी जीकेएस पे आते हैं वो लोग 1 साल, अपना पहला साल इधर गुजारते हैं, तो कि दे आर गोइंग टू बी एडमिटेड इन मास्टर डिग्री और डॉक्टरल डिग्री, राइट। तो वो इधर आते हैं, वहां पे पूरा साल जो है वो कोरियन सीखते हैं। और यहाँ पे मेरी काफी इंटरेक्शन भी हुई है, काफी ऐसे समझने के, अभी जो एक दो लोग आए, एक फीमेल एक मेल कैंडिडेट है जो कि जीकेएस पे आए पाकिस्तान से, उनसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई है, उनसे भी हमने काफी नॉलेज ली है कि भाई हमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप एक सेशन दें हमें, क्योंकि वो प्योरली एक ना फ्रेश तरीके से उस प्रोसेस से गुजर के आए हुए हैं, राइट। तो बहरहाल आगे चलते हैं कि डिग्री प्रोग्राम हमारे पास 3 होते हैं, मास्टर, डॉक्टरल एंड रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, रिसर्च वाला प्रोग्राम मिनिमम 6 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। डॉक्टरल प्रोग्राम आपका 3 साल का होगा, इन प्लस 1 ईयर ऑफ द लैंग्वेज प्रोग्राम। और मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की होगी। ये कुछ कोटा होती है थ्रू आउट द ग्लोब एप्लीकेशन के ट्रैक के हिसाब से। तो 2 एप्लीकेशन ट्रैक्स हैं, एक होता है आपका एम्बेसी ट्रैक, एक होता है आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक। इन दोनों को हम अच्छे तरीके से इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज हमारे फिलहाल काम की नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ कोटा कि आपके पास कितने सीट्स होने चाहिए थ्रू आउट द ग्लोब इन दिस प्रोग्राम। तो जीकेएस में हर साल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल जो है ना दोनों ट्रैक्स पे, यूनिवर्सिटी ट्रैक पे भी और एम्बेसी ट्रैक पे भी जो है वो कितने लोग आते हैं, 1300 लोग आते हैं। और ये 1300 लोग राउंड द ग्लोब आते हैं। पाकिस्तान से मैक्सिमम 15 लोग आते हैं अमंग दीज 1300 कैंडिडेट्स, ठीक है। और पाकिस्तान में वो जो 13 लोग या 17 लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी भी तकरीबन जो एप्लीकेशन का जो एक नंबर है वो हंड्रेड्स में भी होता है, किसी साल थाउजेंड्स में भी होता है। मींस पाकिस्तान के अंदर से ही आप 100 या 1000 पीपल अप्लाई करते हैं, जिसमें से 10 to 15 पीपल आर गोइंग टू बी एडमिटेड, राइट। तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसके पर्क्स बहुत अच्छे हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, अवेलेबल, जिसको इन्होंने कैटेगराइज किया है टाइप ए यूनिवर्सिटीज एंड टाइप बी यूनिवर्सिटीज। टाइप ए यूनिवर्सिटीज में आपके पास 30 इंस्टीट्यूशंस हैं और टाइप बी में आपके पास 35 हैं। ये टाइप ए और टाइप बी का क्या चक्कर है, ये जब हम ट्रैक्स को स्टडी करेंगे ना, लाइक मैं आपको पहले ही बता दूं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक एक अलग तरीकेकार है अप्लाई करने का, और एम्बेसी ट्रैक एक अलग है। तो एम्बेसी ट्रैक में जब आप अप्लाई करते हो तो आप 3 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हो। तो आप क्या करते हो, जो हमारा पहला मोटिव होता है कि हम टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाएं या टारगेट करें बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज जो कोरिया के अंदर है उनको। तो टाइप ए में भी इन्होंने कैटेगोरिकली कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज रखी हैं, टॉप की रखी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी अच्छे रैंक में आती हैं। और टाइप बी में भी कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी रिसर्च करके ना क्या सोचते हैं कि भाई जो टाइप ए के अंदर 13 इंस्टीट्यूट्स हैं ना, मुझे तीनों यूनिवर्सिटीज इधर से चूज करनी है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको कैटेगराइज कर दिया है कि पहले क्या होता था कि टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते तो सारे बच्चे जो हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज में आ जाते थे, बाकी यूनिवर्सिटीज को जो फंड्स मिलते थे उनमें कोई केजीएस का बंदा नहीं आता था। तो इन्होंने कैटेगोरिकली इन्होंने कर दिया है कि टाइप ए और टाइप बी के आपने जो 3 एप्लीकेशंस 3 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है एम्बेसी ट्रैक में, उसमें मैंडेटोरी है कि आप टाइप ए से तो 2 कम से कम उठा सकते हैं, 3 नहीं उठा सकते। आपको एक यूनिवर्सिटी टाइप बी से उठानी ही होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज है ना वो भी कवर हो जाती हैं कोरिया के गवर्नमेंट के हिसाब से। अदरवाइज क्या होता है कि रश करते हैं लोग आने के लिए, तो टारगेट करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज को। तो 4-5 यूनिवर्सिटीज में जीकेएस प्रोग्राम चल रहा होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 5-8 साल पहले की बात। अब इन्होंने ये जो कैटेगोरिकली चेंज किया है वो इसी वजह से किया है कि लोग जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी आए इनकी। तो एक्चुअली जीकेएस जो प्रोग्राम है ना, ये पैसा जो देते हैं ना बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ पे, वो एक्चुअल इनका जो क्या कहते हैं मुद्दा होता है, वो होता है कि हमारे पास यंग बंदा आए, यंग ब्लड आए यहाँ पे, क्योंकि इनके पास यंग बंदों की बहुत कमी यहाँ पे। यहाँ तो बच्चे हैं, यहाँ तो बहुत बूढ़े हैं। बूढ़े इनके काम के नहीं है क्योंकि वो ज्यादा सैलरी लेते हैं इनसे, और काम में भी इतना वो इफेक्टिव नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, प्रोमोट करने के लिए 2 चीजें इनके जहन के अंदर है। एक तो यंग बंदा है जो कि एज वाइज कहाँ से कहाँ तक हो, 20 से 35 के दरमियान हो या 20 से 39 के दरमियान। और दूसरा
ये अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है। तो ये क्या करते हैं कि जितने बाहर से लोग इधर कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे वो प्रमोट करेंगे अपने मुल्क में वो चीज, ताकि इनकी जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल्स इनके हैं, तो वो सारी चीजें इनकी प्रमोट हो थ्रू आउट द ग्लोब। तो ये इनके थोड़े बैकबोन पे इनका जो मकसद है ना, ये जीपीएस देना, तो ये इनका प्रोसीजर होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जो काम की चीजें उस पे। ओके, तो काम की चीज पे आते हैं कि यहाँ पे कोटा असाइंड बाय द कंट्री के, यहाँ पे देखें आपके एम्बेसी ट्रैक में आपके पास 5 सीटें हैं सिर्फ पाकिस्तान की। ये ओवरऑल लिस्ट में से मैंने निकाल के रखी है। पाकिस्तान से एम्बेसी ट्रैक में 5 बंदे शॉर्ट लिस्ट होंगे, राइट, थ्रू आउट द कंट्री। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपके पास जो सीट्स हैं पाकिस्तान के लिए वो 7 हैं। तो टोटल इस साल 2023 के लिए 7 यहाँ से, 5 यहाँ से, 12 बंदे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा टफ है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पे आती हैं, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मैं ये भी समझा दूं कि यहाँ पे मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च ये इंक्लूसिव है। रिसर्च को छोड़ के मास्टर्स एंड पीएचडी इंक्लूसिव है। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम में। ओके, ये तो सीट्स का नंबर हो गया। अब आते हैं कि डिग्री रिक्वायरमेंट्स। ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई जो मास्टर्स करने आएगा उसके पास बैचलर की डिग्री हो। बैचलर की डिग्री किसकी हो? HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हो। ये ध्यान में रखिएगा कि किसी वो 2 साल वाली डिग्री ना हो, जैसे हम कहते हैं 14 ईयर्स एजुकेशन, वो ना हो। 16 साल की एजुकेशन हो, और 4 साल जो आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे वो यूनिवर्सिटी HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। और ऑब्वियसली जो डॉक्टर डिग्री के लिए आएगा वो उसके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और रिसर्च वाला बंदा जो है वो प्रोफेसर होना चाहिए। प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है अपनी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में, लेक्चरर हो सकता है, उसकी डॉक्टरेट की हुई हो, मतलब ही मस्ट बी अ डॉक्टर, जो 6 महीने या 1 साल के लिए आएगा। तो और अपनी यूनिवर्सिटी में वो एकेडमिक सेक्टर में काम कर रहा हो तो वो एक्सटेंड कर सकता है 6 माह या 1 साल के लिए GKS पे एज अ प्रोफेसर। तो वो यहाँ पे प्रोफेसर का काम करेगा, उसकी प्रॉपरली जॉब होती है यहाँ पे, राइट। अच्छा, ये थोड़ा काम की चीज यहाँ पे आप समझ लें कि मैंने जैसे अपने वीडियो में भी बताया था लास्ट टाइम कि आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 2.64 है। तो अभी आप एक पेन पेपर भी ले लें कि अगर आपकी जो GPA है वो CGPA, तो वो अगर 2.64 है तो आप अभी से ही एलिजिबल हैं। लेकिन वो 2.64 क्या होनी चाहिए? आउट ऑफ 4 वाली कैटेगरी में होनी चाहिए। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया के अंदर 4.3 वाला जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करते हैं तो उनके लिए 2.8, 4.5 वालों के लिए 2.91 इज द कट ऑफ, एंड 5 CGPA वालों के लिए 3.23 इज द कट ऑफ, राइट। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जहां तक मेरा तजर्बा है वो ये है कि ये 4 वाला ही स्टैंडर्ड होता है, 4 मैक्सिमम GPA होती है। तो अभी से ही आप थोड़ा वो उसको मार्क कर दें कि जो बंदे 2.64 में है वो एलिजिबल है आउट ऑफ 4। अच्छा, आपकी एज रिस्ट्रिक्शन नॉट मोर देन द 40, राइट। ये बहुत ही इजी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 किस्म के फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1 टू फॉर्म 9। और ये फॉर्म 1 टू फॉर्म 9 में आपको एक लिंक भेजता हूं यहाँ पे अपना कमेंट्स में या चैट बॉक्स में, और आपको एक PDF भी भेजता हूं जो कि आपको पूरे 9 के 9 फॉर्म्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, फंड लेटर रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ इनविटेशन, GKS एप्लीकेशन, एप्लीकेंट एग्रीमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट और कंसेंट टू कलेक्ट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीजें स्किप्ड हैं फॉर मास्टर्स। जैसे मास्टर्स में रिक्वायर्ड चीजें जो है ना वो पहले 3 है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, जो कि डॉक्टरल डिग्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड है, मस्ट है। ठीक है, लेट अस रिज्यूम कि एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान जो है ना वो दोनों प्रोग्राम में जो है ना वो रिक्वायर्ड है, मास्टर्स में भी और डॉक्टरल में भी। रिसर्च में आपके पास स्टडी प्लान की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे जॉब करते हो, तो वो प्रोफेसर और आपके दरमियानी जो है ना वो डिसाइड होता है कि आपने क्या करना है यहाँ पे।
और रिसर्च प्रपोजल जो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा, जैसे हम कहते हैं कि यूरोप जाते हैं या यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो आप बड़ा कंफ्यूज होते हो, स्पेशली जिन्होंने बैचलर्स की होती है। तो उन बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, जबकि हमने कोई रिसर्च की ही नहीं है। इज इट वैलिड थिंग कि जब हमने कोई रिसर्च ही नहीं की तो हम रिसर्च प्रपोजल में इतनी महारत नहीं रखते, तो हम कैसे बनाए? तो कोरियन की ये अच्छी आदत है कि ये पहले से ही प्रोजेक्ट्स हंट करके बैठते हैं। ठीक है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल जो है ना, वो मास्टर्स में या डॉक्टरल डिग्री में जरूरत नहीं पड़ती। वो यहाँ पे आप अपने प्रोफेसर की असाइंड टास्क पे काम करते हो और उनके ही प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हो, राइट? सो जो चौथी रिक्वायरमेंट है ना, रिसर्च प्रपोजल, जो कि आपका हेडेक भी बनने जा रही होगी, तो उसको आप जहन से निकाल दें। स्टडी प्लान बहुत ही आसान है। आजकल तो चैट जीपीटी आपको स्टडी प्लान बना के दे सकता है, पर्सनल स्टेटमेंट आपको बना के दे सकता है, तो यू कैन फॉलो दीज डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो ये टूल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, 1 लेटर रिकमेंडेशन तीनों में रिक्वायर्ड है, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, इवन आई कैन गिव यू द रिकमेंडेशन लेटर इफ आई नो यू, इफ यू आर फ्रॉम सखर आईबी, आई कैन गिव यू माय रिकमेंडेशन लेटर, डोंट नो वरीज एट ऑल। या जो बच्चे अपने अपने टीचर के साथ कंसर्न है, जो यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाते हैं, किसी एक टीचर के साथ भी उनका मतलब वो हो पीएचडी डॉक्टर अल्टीमेटली, तो उसका आप एक रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, राइट? एंड देन ओके, लेटर ऑफ इनविटेशन इशूड बाय द रिसर्च प्रोग्राम, जो कि हमें मास्टर में भी नहीं चाहिए, पीएचडी में भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एडमिशन लेटर्स मिलेंगे उसमें। इनविटेशन लेटर हमेशा रिसर्च वाले बंदे को मिलेगा जो 6 माह या 1 साल के लिए आएगा। तो अच्छा, जीकेस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये फॉर्म 7 वहां पे मौजूद है, 1 पेज का। पर्सनल मेडिकल, अच्छा उसमें वो लिस्ट मेडिकल की दी हुई है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले ही बता दूं कि कोरियन जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं सेहत के मामले में। आपको एड्स नहीं होनी निकलनी चाहिए, आपको हेपेटाइटिस सी डायग्नोस ना हो, सही है, आपको थैलीसीमिया सांस की बीमारी ना हो, आपको यू कैन से ये जो अपना क्या कहते हैं टीबी, ये ना हो। ये 4 चीजें अगर आप में बाय बर्थ हैं और आप उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप साउथ कोरिया अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो डायग्नोस होती हैं चीजें, सही है। तो इन चीजों से काइंडली आप आपके पास अभी 3 से 4 माह है, क्योंकि वो विंडो जो ओपन होगी जीकेएस की, तो वो ओपन होगी दिसंबर से, और मार्च में इसकी डेडलाइन होती है। तो अभी से ही आप अपने मेडिकल वाली जो चीजें ना, इन पे थोड़ा फोकस करें अच्छे से, और चेक करें कि वेदर यू आर एलिजिबल, क्योंकि आप इतनी मेहनत करने के बाद इस किसी एक मेडिकल रिक्वायरमेंट से रह जाएंगे तो पूरी आपकी मेहनत जाया होने के चांसेस हैं, राइट? एंड कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी एक फॉर्म होता है वहां पे। जो वेबसाइट है इनकी, एम्बेसी ऑफ साउथ कोरिया इन पाकिस्तान, उनकी इस पे मौजूद होते हैं ये सारे फॉर्म्स। ये 9 फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट्स है ना, इसमें जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है वो अभी से ही बनवा लें आप, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में भी वो काम आएगा। वो होता है कि आप प्रूव करें कि आप पाकिस्तानी पेरेंट्स के बच्चे हैं। ठीक है, ये बड़ा फोकस करते हैं इस चीज पे कि ड्यूअल नेशनल ना हो आपके पेरेंट्स, और कोई एक पेरेंट आपका कोरियन ना हो, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे जो अच्छा प्रूफ होता है, आप नादरा के पास जाएं और अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी से ही निकलवा लें, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं FRC। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है आपके लिए, नॉट ओनली फॉर द कोरिया बट व्हेन यू आर अप्लाइंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके पास FRC होना चाहिए, ताकि प्रूव हो कि आप पाकिस्तानी सिटीजन तो हैं, लेकिन आप किसी खानदान के ट्री के अंडर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स के लिए आते हैं, तो HEC से तक अटेस्टेशन आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। मैं अब इन चीजों को थोड़ा फोकस नहीं कर रहा जो आपको सामने नजर आ रही है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता के ना बता देता हूं कि कौन से सर्टिफिकेट आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में मैं वहां से स्टार्ट करता हूं जिसकी मास्टर्स की हुई है। तो मास्टर्स के 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन में आने के बाद HEC से वेरीफाइड हो, अटेस्टेड हो, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड हो। ये 3 चीजें, मतलब मास्टर की डिग्री, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट। ये 4 यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट है ना, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर PhD, ये चारों डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाइड हो, अपनी यूनिवर्सिटी जहां से की हुई है। वेरिफिकेशन के बाद आप जाते हो HEC।
हायर एजुकेशन कमीशन, वहां से अटेस्टेड हो, और उसके बाद यही चारों डॉक्यूमेंट्स आपके जिस कंट्री के लिए अप्लाई करोगे ना, उसकी एम्बेसी से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कराची में ऑफिस है इनकी और इस्लामाबाद में भी ऑफिस है इनकी, मूफा जिसे हम कहते हैं, MOFA, वहां से अटेस्टेड आप अभी से ही करवा लें। अभी से ये डॉक्यूमेंटेशन की जो एक आपको परेशानी होगी ना, ये यहां से ही स्टार्ट करें ताकि इन हैंड आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो। उसके बाद आ जाए आपके 4 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंटरमीडिएट के और मेट्रिकुलेशन के, जिसमें आपको मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट के लिए पक्का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट इंटर की, मैट्रिक में भी पक्का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपके क्या होने चाहिए, अपने बोर्ड से वेरीफाई होने चाहिए, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद IPCC इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन जो कराची में ऑफिस है वहां से अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब ये कितने हो गए टोटल, 8 डॉक्यूमेंट्स हो गए। 4 डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी के हो गए जो कि HEC तक आएंगे, और 4 डॉक्यूमेंट आपके आ गए बोर्ड वाले, इंटरमीडिएट और मैट्रिक वाले। जब ये 8 डॉक्यूमेंट आपके पास HEC अटेस्टेड और IPCC अटेस्टेशन हो जाए, 8 डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो वहां से आपको 8 एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प करवाना होगा। तो ये हो जाएंगे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, तो उससे सब, उसमें जो पहले पहले आता है वो आता है आपका क्या कहते हैं, पासपोर्ट। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट में अगले जो 6 महीने ना, वहां तक ये वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपके पास होने चाहिए आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें ये मतलब प्रूफ हो कि आपकी ये मदर है, ये फादर है, क्योंकि यहाँ पे मदर नेम जो है ना वो ज्यादा फोकस किया जाता है, आपसे कंफर्म करने के लिए, डबल चेक करने के लिए कि आप पाकिस्तान सिटीजन है, तो आपसे मदर का नाम पूछा जाएगा, किसी भी स्टेज पे पूछ सकते हैं। तो आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टॉप ऑफ द लिस्ट पे वो रखना होगा, FRC। ठीक हो गया। 8 आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आपने कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट किया है, जिसे हम कहते हैं 2 टाइप के लैंग्वेज सर्टिफिकेट होते हैं, एक आपका होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपको यूनिवर्सिटी देती है, वो ऑप्शनल लगा दें उसमें, और वो अटेस्टेड नहीं होगा, ये बात जान लें, अटेस्टेशन सिर्फ इन 8 डॉक्यूमेंट्स की होती है। उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज किया हुआ है, यानी जिसे हम आइल्ट्स कहते हैं, टॉफिल वगैरह कहते हैं, तो वो अगर आपने किया, वैसे यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं होता, वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपने कर लेना है, क्योंकि अगर आप एक दफा ये आइल्ट्स कर लेते हो तो आप बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया के अंदर, दूसरे जो मुल्क हैं, उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो उसमें आपके पास बैंड का जो है ना वो ये होगा कि 6 बैंड मिनिमम आप लेकर आए, 6.5 बैंड लेकर आए, मोर देन इनफ, राइट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीजा जब अप्लाई करते हो तो वीजा का फॉर्म आता है, फिर ये 8 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रिकमेंडेशन लेटर आता है, ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, तो वो एक अलग फॉर्म मिलेगा, वीजा फॉर्म, उसमें 1-2 ऑप्शनल एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, वो वहां पे लिखे होंगे। लेकिन फंडामेंटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं, जिसमें आपकी मेहनत भी लगेगी कि आपको मूफा जाना पड़ेगा, HEC जाना पड़ेगा, IPCC जाना पड़ेगा। तो काइंडली पहले ये अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रिपेयर कर लें, राइट। ये जो सारी चीजें ना, ये बाकी जो है वो उनका उनकी समरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लोगे तो अब आते हैं हम ट्रैक्स पे आते हैं, ठीक है। ट्रैक्स में हम क्या करेंगे, जब आपके पास थिंग्स टू, ये वाले हैं आई थिंक, हाँ दिस वन, ठीक है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ द सिलेक्शन, जो कि एम्बेसी हो या यूनिवर्सिटी हो। पहले ये बता दूं कि एम्बेसी ट्रैक में जाओगे तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट बनाने होंगे। एक आपका सेट एम्बेसी खुद रखेगी, और 3 जो हैं वो आपको जो लिस्ट मिली हुई है टाइप A टाइप B की, उन यूनिवर्सिटीज के नाम लिखोगे, 3 सेट उनके नाम लिखोगे। फिर वो एम्बेसी आपकी 4 जो सेट है ना, वो 3 जो यूनिवर्सिटीज आपने सिलेक्ट की हैं उनको भेजेगी फॉर एडमिशन सिक्योरिंग, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको एक ही यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, ये याद कर लें कि एम्बेसी ट्रैक में आपको एक एज मिलता है कि आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप कोई भी एक यूनिवर्सिटी करेंगे। अच्छा, अब एम्बेसी में आपको पता नहीं चलता कि आपकी एडमिशन हुई है या नहीं एट फर्स्ट इंस्टेंट, लेकिन यूनिवर्सिटी में फिर एक फायदा क्या है, यूनिवर्सिटी ट्रैक में तो आप एक यूनिवर्सिटी करोगे, लेकिन आपको एडवांस में पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट होने जा रहे हो, क्योंकि आप प्रोफेसर को भी अप्रोच करते हो, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को भी अप्रोच करते हो, वहां से आपको एडमिशन लेटर आता है।
तो उसमें थोड़े चांसेस होते हैं, आपको एक एडवांस में पता चल जाता है कि हाँ मैं अब जीकेएस पे जो है ना शॉर्ट लिस्ट होने जा रहा हूं। लेकिन एम्बेसी में आपको एडवांस में ये चीज अंदेशा नहीं होता, आपको वो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो या नहीं हुए हो, राइट। तो ये थोड़ा जहन में रखिएगा कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो तो आपने पहले ही ये सिलेक्ट करना है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जाना है या एम्बेसी ट्रैक पे जाना है। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि जो बच्चा मतलब जहनी तौर पे प्रिपेयर्ड है साउथ कोरिया आने के लिए जीकेएस पे, कोशिश करे यूनिवर्सिटी ट्रैक को टारगेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक को टारगेट करोगे तो आपका दूसरा जो तरीका है प्रोफेसर स्कॉलरशिप का, वो भी थोड़ा कवर होता जाएगा, वो मैं नेक्स्ट इसमें आपको समझा देता हूं। अच्छा, उसके बाद ओके, अच्छा उसके बाद आते हैं, ये कुछ राउंड्स हैं जिसमें आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं ना, फॉर्म 1 to 9 वो आपने दे दिए। तो ये जाके कोरियन एम्बेसी इन पाकिस्तान जमा होगा और फिर आप वेट करेंगे कि आपको दूसरा जो राउंड है वो आपको कैसे बुलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड तक आप प्रिपेयर कर लें और उसके बाद ये सारी चीजें वही हैं जो मैं आपको वर्बली बता चुका हूं। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीजें में जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 9 आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, फॉर्म 1 to फॉर्म 9 वो मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, और लिंक दे देता हूं, वो सारे के सारे 9 फॉर्म्स वहां पे मौजूद हैं। और उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में, आप स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे फेसबुक पे भेज सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, या क्योंकि कुछ चीजें उसमें कोरियन में भी हैं तो आपने वो ट्रांसलेटर या एआई टूल वगैरह यूज करना होगा उसको समझने के लिए इंग्लिश में। ये एक समराइज्ड सिलेक्शन प्रोसीजर है फर्स्ट राउंड सिलेक्शन का। एम्बेसी में आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे, एम्बेसी रिकमेंड करेगी उस कैंडिडेट को NIIED। NIIED एक ऐसे समझ लें चार्टर्ड प्रोग्राम है साउथ कोरिया का, जो कि इस जीकेएस प्रोग्राम को गवर्नमेंट के थ्रू रन करता है। तो NIIED के पास सारे राइट्स रिजर्व है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जिम्मेदार होगी, यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होती या एम्बेसी जिम्मेदार नहीं होती। ऐसे समझ ले जो मेन चैनल है जीकेएस का वो है NIIED। अच्छा, अगर आप एम्बेसी ट्रैक पे जाते हो तो फर्स्ट राउंड भी वही होगा, सेकंड के रिकमेंड करेगी आपको NIIED, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक भी यही करेगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई होंगे, कहां पे पहुंचेंगे? NIIED के पास पहुंचेंगे। मतलब जो एम्बेसी है वो भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे नाइड में भेजेगी, और जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो नाइड में भेजेगी। एक और चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि जो जब आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करोगे तो 4 सेट आपके पाकिस्तान में ही एम्बेसी मौजूद है, आप वहां पे जमा करोगे या उनको कुरियर करोगे, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करेगा तो वो अपना कंप्लीट सेट जो है इसका डॉक्यूमेंट्स का, वो फिजिकल फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी में कुरियर करेगा उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को, यानी वो यूनिवर्सिटी जो साउथ कोरिया में है। तो इसका थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि आपको एड्रेस, पिन कोड, जिप कोड, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी के एड्रेस तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीजें क्लियर हो। अदरवाइज वो आपका जो फॉर्म या पूरा जो एनवेलप है वो घूमता रहेगा किसी ना किसी मुल्क के पोर्ट पे, राइट। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आपको एड्रेस प्रॉपर मिले, ठीक है। यहाँ पे जिप कोड का बड़ा ख्याल किया जाता है मेलिंग एड्रेस में। अगर थोड़ी सी भी हेराफेरी हो गई मेलिंग में तो आपका डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। NIIED नाइट जो है आपको सेकंड राउंड में सिलेक्ट करती है, और थर्ड राउंड में एम्बेसी ट्रैक में वो सिलेक्शन का जो रिजल्ट है वो वापस जाता है, और फाइनली जीकेएस स्कॉलर को एम्बेसी अनाउंस करती है कि हाँ भाई कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है। सेम इज द केस हियर कि जब आपके पास यूनिवर्सिटी ट्रैक आता है और नाइट जो है वो सिलेक्ट करती है, तो वो आपको एम्बेसी में नहीं भेजेगी, वो डायरेक्ट आपकी रिजल्ट क्या करेगी, बता देगी आपको ईमेल के थ्रू या आपके प्रोफेसर के थ्रू या आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपने सिलेक्ट की है उसके थ्रू कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। समराइज करते हैं कि एम्बेसी जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है, ये स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप, दोनों की जो एप्लीकेशंस हैं एम्बेसी या यूनिवर्सिटी की, वो नाइड के पास आएंगी। नाइड के बाद वो यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करके आपको रिजल्ट देगी नाइड को, और नाइड फाइनली क्या करेगी, वेबसाइट पे या ईमेल पे अनाउंस करेगी कि कौन सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस सारे मसले का जो समरी है वो ये है कि 9 फॉर्म्स आपने प्रिपेयर करने हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और ये प्रोसीजर समझ लेना है कि वेदर आप अपना दिमाग बना लें कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में जाना है या एम्बेसी ट्रैक में जाना है। ये मेन चीजें ये हैं, ठीक है।
ये बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो है ना वो इनकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उनसे फिल किया हुआ है। ओके राइट। अच्छा, अब ये भी सेम चीज है कि राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है। अब आते हैं काम की बात में, जो मोटिवेशन है हमारी, क्योंकि स्कॉलरशिप है तो हमें पैसे मिलते हैं यहाँ पे। और मैं आप सब कैंडिडेट्स को जो भी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको बता दूं कि कोरिया के लिए आना, ठीक है, Excuse me, sir. सबसे, यस प्लीज, यस प्लीज। Sorry to interrupt you, but our time limit is reaching. As we have only 40 minutes, we will restarting the meeting now from ओके, here. श्योर श्योर श्योर, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे अराइव होते हो, ठीक है, तो आपको 2 लाख कोरियन वॉन आपको फर्स्ट सेटलमेंट अलाउंस मिलता है। अब ये 2 लाख कोरियन वॉन जो है, सबसे पहले आप समझ लें कि कितना अमाउंट होता है। राइट नाउ जो 1 लाख कोरियन वॉन है वो तकरीबन 22,000 बनता है पाकिस्तानी। यहाँ पे लाखों में बात होती है क्योंकि करेंसी डाउन है पाकिस्तान से, लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग है मीनवाइल। तो उस हिसाब से आपको 2 लाख कोरियन वॉन जो मिलेंगे वो 44 to 45,000 के दरमियान अमाउंट मिलेगा, जिसमें आप अराइवल के बाद अपने आप को पहले सेटल करोगे। तो वो सेटलमेंट के लिए जो बंदा आपके साथ होगा वो कोई ना कोई देसी बंदा आपके साथ होगा, वो रिकमेंड करेगा आपको। प्रोफेसर या जो जीकेएस केजीएस के अंदर, सॉरी जीकेएस के अंदर जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो आपको खुद ही गाइड करेंगे। यहाँ पे आपके अगर डॉम में रहना चाहते हो या प्राइवेट रूम में रहना चाहते हो अपार्टमेंट में, तो वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद अगर आप मास्टर या डॉक्टरल प्रोग्राम में आते हो तो आपको 1 मिलियन कोरियन वॉन पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। 1 मिलियन कोरियन वॉन जो पाकिस्तानी बनता है अभी, वो तकरीबन तकरीबन कोई 2,20,000 के करीब बनता है। राइट, तो 2,20,000 तकरीबन आपका जो अमाउंट है वो सफिशिएंट होता है यहाँ पे एक स्टूडेंट लाइफ को गुजारने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका रूम रेंट भी निकल जाता है और आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो भी एडजस्ट हो जाता है। और मीनवाइल घूमना फिरना तकरीबन 70 to 80% जो टूर्स है वो जीकेएस वाले खुद करवाते हैं, और 20% अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, पर्सनल आपने कहीं जाना है, तो वो आप 20% में लगा सकते हो। तो मोर और लेस जो मेरा अपना तजर्बा है, जिस तरीके से हम रहते हैं यहाँ पे, तो इतना मतलब मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप 1 मिलियन कोरियन वॉन यहाँ पे अर्न करते हैं, तो आपका मैक्सिमम खर्चा, अगर आप मिजरेबल लाइफ ना गुजारें, एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजारें, तो आपका 5 से 6 लाख कोरियन वॉन खर्चा है। 4 लाख कोरियन वॉन आप बचा सकते हैं। जब आप 4 लाख कोरियन वॉन बचाते हो तो ये पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 88,000 बनते हैं। यानी मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो अच्छी जिंदगी गुजारो, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी करो, तो भी आप अगर जीकेएस पे आते हो तो 80,000 पाकिस्तानी रुपीज आप पर मंथ सेव कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको 24 मंथ से, अगर आप 36 मंथ से, क्योंकि आपका 1 साल जीकेएस पे होता है लैंग्वेज का। और अगर आप पीएचडी पे आते हो तो आप इसको 4 साल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक एस्टिमेशन बना सकते हो कि अगर मैं कोरिया में मास्टर करने जा रहा हूं तो मेरी मास्टर्स और पीएचडी तो हो रही है, लेकिन फाइनेंशियली मैं कितना खुद को सिक्योर कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, तो वो भी एस्टिमेशन आप लगा सकते हो। राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब आप कोरियन लैंग्वेज सीखते हो ना तो आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी टॉपिक एक होता है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन होती है कोरियन लैंग्वेज की, उसके स्टेप्स होते हैं फ्रॉम 1 to 5 एंड ऑनवर्ड्स एज वेल। तो जब आप सीखना शुरू करते हो यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज, जो टॉपिक लेवल 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो जैसे जैसे आपकी लेवल टॉपिक लेवल में बढ़ती है, टॉपिक वाली जो एग्जाम है उसमें आप क्वालिफाई करते हो, तो आपको 1,00,100,000 कोरियन वॉन पर मंथ एडिशनल भी मिलता है। यानी जो दूसरे लोग जीकेएस पे होंगे वो भी सीख रहे होंगे, लेकिन एग्जाम देने के बाद, क्वालिफिकेशन देने के बाद आपका 1,00,000 उसमें एड हो जाएगा सैलरी में। राइट, तो आप 1.1 मिलियन सैलरी विड्रॉ करोगे उस हिसाब से। अच्छा, एक और चीज भी है यहाँ पे कि आपकी फीस कवर होती है उसमें। जो आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो उसका इंसेंटिव अलग मिलता है, डिपेंड करता है आप कितने इम्पैक्ट फैक्टर में छाप रहे हो ड्यूरिंग योर रिसर्च। जो भी आपका एक फाइंडिंग होती है और उसको आप पब्लिकेट कर रहे हो तो उसके रिसर्च रिवार्ड अलग से मिलते हैं, ये याद कर लें। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो होती है वो ऑरिक होती है, और ऑफिस ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन। राइट, तो वहां पे ना उनके जो हायर अथॉरिटीज होते हैं, एजुकेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो रिसर्च को प्रोमोट करने के लिए रिवार्ड सिस्टम रखते हैं। तो जो बंदा अच्छा पेपर लिखता है उसको अच्छा रिवार्ड भी मिलता है। यानी मैं आपको सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर आप
5 इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर अपना छापते हो किसी अच्छे जर्नल में, तो आपको उस पेपर का बीइंग अ फर्स्ट ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर आपको तकरीबन पाकिस्तानी 50 से 60 हजार इंसेंटिव मिलता है एक पेपर का। ये समझ लें, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। अच्छा, ये हो गया एक प्रोग्राम। अब हम आते हैं दूसरे प्रोग्राम पे जो कि है प्रोफेसर स्कॉलरशिप। प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे सबसे पहले जो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट एंड इफेक्टिव, वो ये है कि आपका कोई बंदा आपको जानने वाला वो साउथ कोरिया में किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी कर रहा हो, तो वो क्या करे, आपको अगर उसी अपनी यूनिवर्सिटी में जिस प्रोफेसर के अंडर में वो काम कर रहा है उसकी रिकमेंडेशन अगर आपको दे, यानी एक्सेप्टेंस डायरेक्ट आपकी बात करवाए उसके साथ, दैट इज मोर 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 बेटर। अगर इस तरह का कोई कनेक्शन आपको मिलता है तो पहले उसको अवेल करें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने एक दो बंदों को यहाँ पे बुलाया है जो टेन्योर बेस्ड आए यहाँ पे मास्टर्स या पीएचडी में। उनको फिर हमने इस तरीके से शॉर्टलिस्ट करवाया कि भाई प्रोफेसर भी बैठता है ऑनलाइन उस इंटरव्यू में, हम भी बैठते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं प्रोफेसर के, तुम इन प्रोजेक्ट्स में कंफर्टेबल हो, अगर तुम्हें नहीं है कंफर्ट जोन तो हम किसी दूसरे को चांस दें, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी मैं तो निकल रहा हूं यहाँ से, पीएचडी मेरी पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे काफी पाकिस्तानी सिंधी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। उनके इंफॉर्मेशन फेसबुक पे भी मौजूद है। अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाहते हो तो आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, आपकी मैं सीवी फॉरवर्ड कर सकता हूँ वहां पे, ताकि आपका अगर वहां पे रिजेम्बलेंस है उस प्रोफेसर के प्रोजेक्ट के साथ, जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपकी रेज्यूमे में चीजें लिखी हुई हैं, तो आपका वो ऑनलाइन जो है ना वो कर सकता है इंटरव्यू, एंड देन यू आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड। वंस अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो इस चैनल के थ्रू, तो आपके घर बैठे वो बंदा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का पहले से ही आपका दोस्त या आपका भाई मौजूद है वहां पे, जिसने आपको रिकमेंड करवाया है अपने प्रोफेसर के अंडर में, वो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर भेज सकता है आपके एड्रेस पे, और उसी एडमिशन लेटर के अंदर वीजा की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी लिखी हुई होती हैं, आप वो पूरी करोगे एंड देन यू कैन गो फॉर अप्लाइंग द वीजा। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, और ये सिर्फ कोरिया में नहीं होता, बाकी ममालिक में भी होता है कि अगर आपका पहचानने वाला जानने वाला किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी काम कर रहा है मास्टर्स या पीएचडी, तो वो अपने प्रोफेसर से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दिलवा के दे। और यहाँ पे जो प्रोफेसर की साइकी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि वो ये मानते हैं कि जो बंदा मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहा है वो अगर किसी को रिकमेंड करेगा तो वही जिम्मेदार होगा उसको काम सिखाने का। यानी प्रोफेसर अपने सर पे वो चीज नहीं लेता कि यार ये नया बंदा आ गया है पाकिस्तान से जिसको फॉर एग्जांपल रिसर्च का ABC भी नहीं पता, तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो वो जो बंदा आपको रिकमेंड करेगा पाकिस्तानी या सिंधी या जो आपका जानने वाला है, वही रिस्क उठा के आपको बुला रहा है यहाँ पे, रिगार्डलेस कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपको नहीं आता तो ये जिम्मेदारी उस बंदे की होती है जो आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है। तो बी केयरफुल, अगर इस तरीके से जाते हो तो पहले आप प्रोफेसर की जो एक्सपर्टीज हैं, आपके जान पहचान वाले बंदे की जो एक्सपर्टीज हैं, उनसे पहले ही आप नोहा हो जाओ, ताकि आप यहाँ पे पहुंचो तो आपको पता हो कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है यहाँ पे इस लैब में, या किस फील्ड पे ये काम कर रहे हैं, मैं कंफर्टेबली वो कर सकूंगा या नहीं। क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो ड्यूरिंग योर पीएचडी एक भी टास्क प्रोफेसर का अकम्प्लिश करने में, तो यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट प्रोफेसर को फंडिंग देता है और उसी में से आपकी सैलरी बनती है। अगर उसके अकम्प्लिशमेंट में कोई इश्यू आता है आपकी वजह से, तो प्रोफेसर कैन किक यू आउट ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ द पीएचडी और मास्टर्स, ये याद कर लें जहन में। तो आप अगर आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आते हैं तो आपने जो बोर्ड्स है ना, जो आपके जिसे हम कहते हैं कि कश्तियां जला के आना, तो वो काम करके आना है, बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होके आना है आपने कि मुझे डेडिकेटेडली इस लैब के लिए, इस फील्ड के लिए काम करना है, ठीक है। बिकॉज उस प्रोफेसर को जो अपनी फंडिंग में से आपको सैलरी दे रहा होता है ना, वो ना नहीं सुनेगा आपकी। अगर सुनेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ सेहत के हवाले से सुनेगा कि इसकी तबीयत खराब थी, इसी वजह से ये लैब नहीं आ सका, या कोई सीरियस प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें मिल सकती हैं। अदरवाइज देयर इज नो रिलैक्सेशन और कंफर्ट जोन इन दैट वे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आप एक एक्सेल शीट बनाएं, आप टारगेट करें 10 से 15 20 यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के अंदर, और अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज है मास्टर्स के अंदर, पीएचडी के लिए आना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे प्रोफेसर
के जो आपके पास वहां पे मौजूद होते हैं प्रोफाइल्स, वहां से ईमेल्स उठाओ, एक इस तरह की ईमेल की जो है लिस्ट बनाओ, और मैं आपको फॉर द रेफरेंस ये अगर पीपीटी में एडमिन के साथ शेयर कर दूं, वो आपके साथ शेयर कर दे। ईमेल फॉर्मेट मेरे पास पड़ा है, ये ईमेल फॉर्मेट मेरा है। जब मैंने अप्लाई किया था चाइना, स्कॉटलैंड, यूके या कोरिया या जापान, तो इस तरह का मैंने कुछ ड्राफ्टिंग की थी उस दौर में, आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। तो ईमेल भेजना शुरू करो प्रोफेसर को। ये जहन में नहीं रखिएगा कि आपने अगर 100-200 ईमेल सेंड की तो आपको 100-200 ही रेस्पॉन्सेज मिलेंगे। एक्सपेक्ट एज लीस्ट एज यू कैन, यानी 5 रेस्पॉन्स आ सकते हैं, 2 रेस्पॉन्स आ सकते हैं, रेस्पॉन्स नहीं भी आ सकता। क्योंकि मैं आपको दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे ईमेल कम पढ़ते हैं प्रोफेसर लोग जो होते हैं, वो अपने लैब के अंदर जो एक्टिव मेंबर होता है उसी के हवाले करते हैं, भाई तुम जानो, बताओ अगर कोई ऐसा बंदा अप्रोच कर रहा है लैब को, तो उसको शॉर्टलिस्ट तुम करो और इंटरव्यू कंडक्ट करो मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगा कि इसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह की ईमेल आपने ना फॉर्मेट करनी है। एक ही आप रेफरेंस ईमेल फॉर्मेट कर दो, फिर उसमें एडिटिंग करो कंट्री वाइज, कि मैं अगर कोरिया भेज रहा हूं तो मुझे किस तरह की एडिटिंग करनी है, या मैं चाइना भेज रहा हूं तो किस तरह की कौन से जो है ना चीजें मुझे चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली जो ईमेल लिखी थी अपने चाइना के लिए, तो मैंने लिखा था इस तरह से कि रेस्पेक्टेड प्रोफेसर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ। इस तरह से इंट्रोडक्शन किया कि भाई मैं सीएससी की वेबसाइट सर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मैं अप्लाई करना चाहता हूं, और आपका मैंने प्रोफाइल देखा फला जगह पे। इस तरह से आपने कुछ ऐसा रिलेवेंस दिखाना है उसके साथ, और ये बताना है कि आपने किस किस चीज पे काम किया है, आप किन किन सब्जेक्ट्स में साउंड हो, और आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ये कंटिन्यू है ईमेल फॉर्मेट। दूसरी स्लाइड पे भी अगर आप देख सको तो आप बता सकते हो कि आपकी करंटली कितनी पब्लिकेशंस हैं, क्योंकि याद रखें जो बंदा पीएचडी पे आएगा तो उसकी मास्टर्स की हुई होगी, तो कम से कम अपने मास्टर्स के काम को पब्लिकेट करवा के आओ, क्योंकि एक भी पब्लिकेशन अगर आपकी होगी तो आपका 60% इंटरव्यू एडवांस में ही पास है, क्योंकि प्रोफेसर को ये अश्योर हो जाएगा कि इस बंदे को आर्टिकुलेट करना आता है अपने फाइंडिंग्स को, राइट, यानी रिसर्च पेपर लिखना आता है। तो ये ऐसे समझ लो 60 नंबर आपने एडवांस में ही ले लिए। तो अगर एक भी पब्लिकेशन नहीं होगी तो प्रोफेसर को ये अश्योर हो जाएगा कि यार इसको तो रिसर्च एडवांस में नहीं आती। हाँ, जो मास्टर्स पे आ रहा है उसके लिए ये चीज मैंडेटोरी नहीं है। जो पीएचडी में आ रहा है और मास्टर्स की हुई है, तो कम से कम एट लीस्ट उसकी जो मास्टर्स की थीसिस है, उसका जो मास्टर का टॉपिक है, उस पे एक पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस पेपर हो या जर्नल पेपर हो, व्हाटएवर, लेकिन पेपर होना जरूरी है। ये एक बहुत ही एक ऐसे समझ लो वेटेज रखता है इस मामले में, टू मेक द कन्वीनियंट द नेचर ऑफ द प्रोफेसर, कि वो आपको अपने प्रोजेक्ट में हायर करे। तो ये पूरी एक फॉर्मेट है जिसके अंदर मैंने ये चीजें लिखी थी। लास्ट में आप एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हो कि प्रोफेसर आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल माय डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्कॉलरशिप, यानी प्रोफेसर स्कॉलरशिप, यानी जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। तो मैंने ये जो ईमेल है वो इस तरीके से कंपाइल की थी कि मैं सीएससी में अप्लाई करने जा रहा हूँ, काइंडली प्रोफेसर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दो, मेरी ये एक्सपर्टीज है और आपकी भी ये एक्सपर्टीज है, मुझे लगता है, आई डू बिलीव कि मैं आपके अंडर सुपरविजन काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने सीवी और एक डॉक्यूमेंट्स का ना पीडीएफ पूरा उसके साथ अटैच किया ईमेल के साथ, और वो मल्टीपल जो भी मुझे प्रोफेसर मिलते गए चाइना के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज में, या अपना इसमें कोरिया के अंदर या यूके में या यूएसए में, तो मैं भेजता गया। तो फाइनली मुझे ये 1-2 रेस्पॉन्सेज आए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन में से मुझे ये कांग्रेचुलेशन नोट आया कि भाई आपकी जो है ना वो इसमें हो गई है एडमिशन, ठीक है, हम आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार हैं, काइंडली आप बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करें। तो एक ये मेरे पास आई थी, और इसके बाद एक जैसे ये भी देखेंगे प्रोफेसर जो होते हैं वो इस तरह से आपको रिप्लाई भी करते हैं कि इट विल बी कन्वीनियंट इफ यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली, अदरवाइज प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिशन ऑफिस। तो ये भी एक अच्छा रेस्पॉन्स है कि आप एटलीस्ट रेस्पॉन्स हासिल कर पा रहे हो, ठीक है। या सिलेक्ट माई सेल्फ एज अ फर्स्ट सुपरवाइजर, या प्रोफेसर ली पेंग था जो मुझे मेरे साथ राब्ते में था उस वक्त ईमेल पे, कि भाई उसको आप सेकंड प्रोफेसर रखो, सेकंड सुपरवाइजर रखो। तो इस तरह से आपको गाइड भी करते हैं। लेकिन आपका ये जो रेस्पॉन्स का जो सिलसिला है ना, वो आपके राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है, या लक पे भी डिपेंड करता है कि वो ईमेल वो प्रोफेसर के जहन से गुजरे या लैब मेंबर के जहन से गुजरे, तो ही रिप्लाई पॉसिबल है। जैसे चाइना से मुझे ये देखें,
प्रोफेसर ने मुझे भेजा कि भाई ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर भेजा ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी से, जो कि 54th नंबर पे टॉप यूनिवर्सिटी है ओवरऑल वर्ल्ड में। चाइना के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन कोविड आ गया तो फिर मैं नहीं जा पाया वहां पे, वीजा ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास आज भी एज अ रिकॉर्ड मौजूद है कि कम से कम आई वाज वेरी हैप्पी के यस के आई रिसीव एनी वन ऑफ द रेस्पॉन्सेज, कि वो कह रहा था कि ठीक है आप आ जाओ, सीएससी में आप अप्लाई करो और ये एक्सेप्टेंस लेटर अटैच करो अपनी सीएससी की एप्लीकेशन में, आपकी जो है ना वो स्कॉलरशिप हो जाएगी। फिर अगर आपकी ईमेल पे बात हो जाती है या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे मैंने पहले बात की, राइट, तो इंटरव्यू होता है एक ऑनलाइन आपका जूम पे या स्काइप पे, और वो प्रोफेसर जो है आपको बताता है कि भाई मेरे पास इतनी इतनी फंडिंग है, इतने इतने प्रोजेक्ट्स है और ये प्रोजेक्ट्स हैं, काम कर सकते हो, येस और नो, इस तरह से बात करेगा। फिर जो वो लैब मेंबर प्रोफेसर के साथ बैठा होगा वो आपको ब्रीफली बताएगा कि अपनी लैंग्वेज में भी यूज करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रोफेसर से कभी कभी हमें डर भी लगता है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंट में हम उसको एक जैसे ना फेस कर रहे हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो वो लैब मेंबर आपकी हेल्प करता है कि भाईजान ये चीजें चल रही हैं, तुम बताओ तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो हमें थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो अभी कि किस तरह परसू करोगे। तो ये प्रिपरेशन आप मेरे साथ भी कर सकते हो, आप किसी दूसरे बंदे के साथ भी कर सकते हो कि प्रोफेसर को किस तरह हैंडल किया जाए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पीएचडी कर रहा हो। तो मैं दोबारा ये बता दूं कि प्रोफेसर के अंडर में आपको अमाउंट तो अच्छा मिलेगा, यानी जीकेएस से अच्छा मिलेगा। जीकेएस में कितना अमाउंट मैंने बताया, 1 मिलियन, मैक्सिमम 1.1 मिलियन। लेकिन प्रोफेसर की स्कॉलरशिप पे आता है तो उसको स्टार्टिंग में ही 1.4 मिलियन ऑफर होना शुरू हो जाता है, 1.6 मिलियन भी होता है, डिपेंड कि आपका जो ये ऑनलाइन इंटरव्यू है वो किस तरह गया है और आप अश्योर किस तरह करते हो अपने प्रोफेसर को कि आप उसके कितने काम के हो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अपने हिसाब से जस्टिफाई करना है, ये टोटली आपके टैलेंट पे, आपके विजडम पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर डीलिंग योर प्रोफेसर व्हाइल गेटिंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स एडमिशन फॉर यू, कि आप उसके कितने काम के हो। तो मेरी काफी दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने ये भी अश्योर किया कि हमें 2-2 मिलियन कोरियन वॉन भी मिलते हैं, एंड बिलीव मी 2 मिलियन इज नॉट अ मतलब लो अमाउंट नहीं है ये, 2 मिलियन अच्छा खासा अमाउंट है यहाँ पे कमाना। 2.5 मिलियन भी कोई प्रोफेसर दे रहा है यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप, मतलब ये एक अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका है। जीकेएस में थोड़ी सी एक लेंथ ज्यादा है टाइम की, क्योंकि दिसंबर में अभी ओपन होने जा रहा है, फिर मार्च तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर नेक्स्ट जून जुलाई तक आपको बुला सकते हैं ये लोग। यानी अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो जीकेएस के लिए अगर आप प्लान भी कर रहे हो तो कम से कम आपका यहां तक पहुंचने में 1 साल और लगने जा रहा है, यानी अगले साल अगस्त में आके आप एडमिट होने जा रहे हो। बात समझ आ गई होगी आई थिंक। एंड देन इफ इन द मीन टाइम अगर आप ये वाला तरीका करते हो, यानी आप 10-15 यूनिवर्सिटीज उठाते हो और प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करते हो, या अपने दोस्त को अप्रोच करते हो जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है, उसके पास अगर गुंजाइश है, प्रोफेसर को कन्विंस कर सकता है, आपके लिए इंटरव्यू तक लेके आ सकता है आपको, तो मच बेटर, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपके लिए। फिर आपको वो प्रिपरेशन करनी होगी ऑनलाइन इंटरव्यू की कि हाँ प्रोफेसर जो चीज आप करवाना चाह रहे हो उसमें मैं इतना महारत रखता हूँ या इतनी मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ही आपका फिर वो स्टाइपेंड डिसाइड होता है, इंसेंटिव जो होता है ना वो डिसाइड होता है कि आपको कितना मिले। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप फाइनल फेजेस में हो पीएचडी के और आपने प्रोफेसर को अच्छा कन्वीनियंट रखा है कि आप पब्लिकेशन भी दे रहे हो, हाई इम्पैक्ट में उसके प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर रहे हो, मतलब सीख जाते हो यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि आप डे 1 से ही सीख आ जाती है आपको और आप काम करना शुरू करते हो, नहीं, इट विल टेक टाइम, अराउंड 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप लेंगे उस चीज को सिंक होने में ना। लेकिन अगर आप वंस आप सिंक हो जाते हो तो यू विल बी एंजॉयिंग योर स्टडीज एंड यू विल बी एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ योर प्रोफेसर्स एज वेल, और आपकी बहुत सारी लर्निंग भी होती है। ये चीज याद कर लें, आप बूस्ट हो जाते हो, पेस पकड़ लेते हो रिसर्च का, आपका हर महीने पब्लिकेशन का एक न्यूज आ जाती है आपके ईमेल पे। लाइक मैं अपने प्रोफाइल की बात करूं तो राइट नाउ आई एम द ऑथर ऑफ विद दिस लैब जहां पे मैंने पीएचडी की है, आई एम द ऑथर ऑफ 33 इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस, ठीक है, जिसमें मेरे मोर देन 10 पेपर्स एज अ फर्स्ट ऑथर है, रेस्ट ऑफ को ऑथर एंड कंट्रीब्यूटर के तौर पे हैं। इवन 2 पेपर तो मेरे करस्पॉन्डिंग ऑथरशिप में भी हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं टीम वर्क से यहाँ पे और डेडिकेशन से। ये तभी पॉसिबल हुआ कि पहले 3-4 माह ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, समझना पड़ा साइकी को कि प्रोजेक्ट की साइकी क्या है, प्रोफेसर की साइकी क्या है, और हमें अपने आप को कितना
जो है ना वो उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा ताकि वो प्रोफेसर को पता चले कि हम काम कर रहे हैं। और फिर जब हम सबमिशन करना शुरू किया मैंने अपने पहले पहले आर्टिकल का, तो मुझे डर था कि रिजेक्ट होगा। इट वाज वेरी प्रीटी मच नेचुरल कि मुझे ये था कि ये भाई रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई डू बिलीव माई सेल्फ के उस टाइम मेरे इतने वो अच्छे स्किल्स नहीं थे। लेकिन जब मेजर रिवीजन आई उस पेपर की, मैंने वो कमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए, तो मुझे मतलब जमा किया, दोबारा रिवीजन मैंने जमा की। एंड देन जब एक्सेप्टेंस आती है तो आपको एक खुशी की लहर मिलती है और एक मोटिवेशन मिल जाती है कि यस आई कैन डू ना, आई कैन डू नाउ, दिस इज द स्टेज, दिस इज द टाइम, कि अब मैंने पेस पकड़ना शुरू किया है। तो पहली एक्सेप्टेंस आने के बाद आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है, ट्रैक मिल जाता है। लेकिन जो लोग ये डर के बैठ जाते हैं इस मामले में कि यार लोग क्या सोचेंगे कि मेरा पहला पेपर रिजेक्ट हुआ है, तो काइंडली ये जहन से निकाल दें। रिजेक्शन, फेल्यूर आर की टू सक्सेस। ठीक है, इनको एक्सेप्ट करना सीखो, एब्सॉर्ब करना सीखो कि हाँ मैं फेल्यूर हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे नहीं कर सकता। ये फेल्यूर मेरे लिए एक लेसन है जिसको मैंने सीख के आगे सक्सेस की तरफ जाना है। राइट? तो जहन से ये फेल्यूर वाला जो डर है ना वो पहले साइड में निकाल दो। यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, ये आपका अपना डर होता है। आप खुद गिल्ट फील कर रहे होते हो अपने जमीर के अंदर कि यार तुमने ये भी काम गलत कर दिया, अभी तक तुम्हें रिजेक्शन मिल रही है। दूसरे लोग आपको नहीं कह रहे कुछ भी, डोंट वरी, दूसरे लोगों के पास टाइम ही नहीं, हर कोई बिजी है अपने कामों में। तो फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक हो गया? तो प्रोफेसर के अंडर में आने के लिए आपको मेंटली फिजिकली मतलब ऐसे समझ लो प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। और घर के जो हालात हैं आपके पाकिस्तान में, सिंध के अंदर, उनको भी थोड़ा इग्नोर करना होगा। यानी बिल्कुल जो भी आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइले हैं, वो बिल्कुल साइडलाइन करके फुल डेडिकेटेड 1 से 1.5 साल प्रोफेसर का दिल जीतना होगा, उसका जहन पढ़ना होगा, उसकी डिमांड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी करनी होगी। फिर जाके आप सीखते भी हो और एक पेस पकड़ते हो कि आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बात करने के स्टाइल में, आपके आर्टिकुलेशन करने के स्टाइल में, वो बहुत सारा फर्क आ जाता है, आप खुद महसूस करोगे। तो अगर मैं बात करूं लास्ट वाली ये चीज के, अगर आपको 2 मिलियन भी मिलते हैं, एक मोटिवेशन फीस दे रहा हूं, तो अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। यानी अपने हिसाब से खर्चा निकाल के आप 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज हर महीने सेव भी कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे। ठीक है, आपको बैठे बैठा है कोई ऐसा एक्सेप्शन लेटर आके हाथ में नहीं देगा, उम्मीद रखो लेकिन मेहनत कंटिन्यू करो। मतलब ये नहीं करना कि बस मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं कि सर फिदा बैठा है, वो एक्सेप्टेंस लेटर मुझे दिलवा के देगा तो बस मैं काम शुरू करूंगा, इस तरह नहीं होगा। आपने घर बैठे उस चीज को इम्प्रूव करना है कि मैं कोरिया जाके क्या करने जा रहा हूँ। तो वो जो मेरा दोस्त मेरे मतलब रिस्क, अपनी रिस्क उठा के मुझे बुला रहा है, तो मैं उसकी पूरी उम्मीदों पे उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। राइट? प्रोफेसर को कन्विंस, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। तो जीकेएस की पूरी गाइडलाइन भी मौजूद है। आप एम्बेसी ऑफ साउथ कोरिया इन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाओगे तो पहले ही पहले जीकेएस के 3 लिंक्स आएंगे। एक आपकी कंप्लीट गाइड होगी, दूसरे ये फॉर्म्स होंगे, और तीसरा आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन होगा। तो आप इजीली वहां से कर सकते हो। मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए कि कौन से होंगे, एंड देन आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे भी कैसे आना है वो भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे ये फाइनल फेजेस हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की एक प्रिपरेशन करो, फ्रॉम एक जनरल पीडीएफ बनाओ, पिक्चर निकाल के हर डॉक्यूमेंट की, फ्रॉम पासपोर्ट टू योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। राइट? एंड देन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर प्रोफेसर स्कॉलरशिप, तो आपके पास घर बैठे एडमिशन लेटर आ जाएगा, आप वीजा अप्लाई करोगे, टिकट बुक करवाओगे। अच्छा, टिकट बुक कराने से पहले आप राब्ता करोगे अगर आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आ रहे हो कि भाई प्रोफेसर मुझे टिकट देगा या नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो आपको अपने पैसों पे आना है। लेकिन मैंने काफी लोगों से यहाँ पे कंफर्म किया कि काफी जो प्रोफेसर्स हैं वो अपनी बजट में से, अपने फंड्स में से टिकट भी देते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी प्रोग्राम पे आ रहे हो, यानी जीकेएस पे आ रहे हो, तो उसमें तो कंफर्म है कि आपको एयर फेयर फ्रॉम पाकिस्तान टू कोरिया 110% मिलेगा। ठीक है, आपके पास अब साउथ कोरिया में जब आते हो तो वो जो दोस्त होगा, वो जो लेबमेट होगा आपका, वो आपको रिसीव करेगा। और बाजों का प्रोफेसर भी आपको रिसीव करने आता है, कुछ लोगों को एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी आता है, इतनी इज्जत बख्शते हैं ये। ठीक है, तो ये भी है कि, और आपको एक अलाउंस भी देते हैं कि भाई ठीक है ये 2 लाख 3 लाख कोरियन वोन आप रख लो और जाओ जाके अपना अरेंजमेंट करो अपना रहने की। राइट? यहाँ स्टार्टिंग जो सेटलमेंट है वो आप कर लो अपना। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो।
ठीक है, तो साउथ कोरिया में एक तो ये सारे एकेडमिक्स हो गए। अब आते हैं, मैं 5 मिनट आपके लूंगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं कि साउथ कोरिया में हम पाकिस्तानी या हम सिंधी कैसे रह सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे हैं केपीके से बिलोंग करने वाले, पंजाब से बिलोंग करने वाले, कश्मीर से, क्योंकि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं या खाने पीने के जो अंदाज हैं वो थोड़े डिफरेंट है ना यहाँ से। तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको रिग्रेट फील हो, आपको खाना भी मिल जाता है, लेकिन खुद पकाना पड़ेगा आपको। पाकिस्तानी खाना रेस्टोरेंट्स में तो नहीं मिलेगा, वो जाहिर बात है कोरियन खाना ही मिलेगा। तो काइंडली जब आप कोरिया आए तो थोड़े कुकिंग स्किल्स भी अपने इम्प्रूव करके आइएगा यहाँ पे, ताकि आपको रोजे रखने ना पड़े डेली। राइट। तो सबसे पहले ये थोड़ा इशू है, खाना पीना आपको खुद अरेंज करना होगा। अच्छा, अब हलाल खाना कैसे अरेंज होगा, वो आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती हैं आपके डोर स्टेप्स पे। इवन आपका जो मीट है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी चिकन आपको दरवाजे पे मिल जाएगा। जस्ट आपने एक ऐप यूज करनी है, आपने वहां पे ऑर्डर प्लेस करना है, आटा मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा। यानी मैं ज्यादा इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, एवरीथिंग मुनासिबत से जो आप खाते हो नॉर्मली घर के अंदर, वो आपको सब चीजें मिल जाएंगी डोर स्टेप्स पे, और ऑनलाइन आपकी पेमेंट कट जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गई खाने पीने का। दूसरा, ये लोग बड़े रिच हैं कल्चर में। तो जैसे हम सलाम करते हैं तो नॉर्मली बड़े को भी इस तरह सलाम करते हैं ना, अपने जो उम्र से बड़े होते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर फॉर एग्जांपल, या अब्बा के चौने अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं, इस ये बड़ा एक कल्चरल वैल्यूज में रिच अपने आप को समझते हैं, या इन्होंने एक ज़हनी तौर पे साइकी बना ली है। तो ये थोड़े जो है ना कल्चरल वैल्यूज आपको वहां से ही सीख कर आने होंगे पाकिस्तान से। थोड़े आप वीडियोस देख लीजिएगा कोरियन के, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग है तो आपको अन्योंग हस्यु मतलब ऐसे करना होगा, यानी ये नहीं है कि मैं उसके आगे सजदा कर रहा हूँ, ये नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि आप उसको इज्जत दे रहे हो, और वो जब आप इस तरह से एक्ट करोगे किसी के साथ तो वो समझेगा कि ये बहुत बड़ा इज्जतदार बंदा है। तो ये कल्चरल वैल्यू है। ठीक है, बच्चों के साथ यहाँ पे जो बच्चे घूम रहे होते हैं उनको आपने ऐसे स्टेयरिंग नहीं करना, ये बुरा मानते हैं कि कोई इनके बच्चों में ना इस तरह से अपना क्या कहते हैं स्टेयरिंग कर। आई थिंक देर आर 10 मिनट्स रिमेनिंग। मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आप पूछ सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे खत्म करते हैं, So क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कशन अच्छी हो जाए। that's all from our guest speaker. If anybody have any question, kindly raise their hand. I will allow them one by one so they can ask the question from our guest speaker regarding our discussion what they have today. जी, मेरा सवाल ये था कि मास्टर्स के बाद अगर हम कोरिया में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। जैसे कि अगर हम सऊदीया की बात करें तो सऊदी में अगर हम मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद हमें जॉब के लिए फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, और उसके बाद फिर से वीजे के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो कोरिया में इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, वापस आना पड़ता है या वहीं, और क्या जॉब के लिए चांसेस हैं। मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ तो उसके रिलेटेड। यस, लेट मी क्लियर। जॉब के बहुत चांसेस हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो यहाँ पे, जॉब में बहुत पैसा है। राइट, नंबर वन थिंग, जॉब के लिए अगर आपकी मास्टर्स यहाँ से की हुई है तो आप मास्टर्स के दौरान ही 30 to 40% कोरियन सीख लेते हो। तो लैंग्वेज इज मस्ट हियर। लैंग्वेज का बड़ा इशू है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, टॉपिक लेवल 1 2 3 क्लियर हो आपकी, नो नॉट एट ऑल। अगर आपको बोलनी आती है, समझ नहीं आती है और आप जॉब करना चाहते हो कोरियन की मास्टर से, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको 4 से 4.5 मिलियन की जॉब यहाँ पे मिल जाएगी कोरियन वॉन। यहाँ पे जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना मास्टर्स वाले बंदे की, वो तकरीबन 4-4.5 मिलियन कोरियन वॉन है। तो जॉब मिल जाएगी आपको, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तो लोग चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनको बात करना नहीं आता कोरियन लैंग्वेज में, और ये कोरियन लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश इतनी नहीं समझते। ठीक है, कम समझते हैं। सोल बुसान वहां पे थोड़ी बहुत समझते हैं, थोड़ी बहुत होगी 20 to 30% लोग। लेकिन ऐसे कारपोरेट सेक्टर में अगर आप आना चाहते हो जहाँ पे कोरियन 70% बोली जाती है, 80% डॉक्यूमेंट ही कोरियन में लिखा जाता है, तो आपको 3 से 4 माह इधर ही, मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 2 साल आपने कोरियन की, 2 महीने यहाँ पे ही पे करके प्राइवेटली कोरियन सीखो। ठीक है, इसी अपना कोरिया के अंदर ही, क्योंकि आप ज्यादा सीख पाओगे। जो कोरिया के अंदर कोरियन सीखता है तो वो जल्दी सीखता है, ज्यादा सीखता है। तो वो जो आप सीखोगे तो बेस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स, मास्टर की डिग्री और कोरियन की सर्टिफिकेशन, उस पे आपको मैं लिख के दे रहा हूं 4 to 5 मिलियन आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। 4 to 5 मिलियन, यू कैन से 10 to 12 lakhs पाकिस्तानी रुपीस, तो आपको मिल सकती है, नो वरीज एट ऑल। सर मीन्स के आफ्टर मास्टर विदाउट कमिंग टू पाकिस्तान वहीं पर ही जॉब मिल सकती है। 100%, इवन मास्टर्स वाले को भी मिल सकती है, पीएचडी वाले को भी मिल सकती है। पाकिस्तान सिर्फ वो आता है जब वो मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहता है,
पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना चाहता है तो उसके लिए उसको वापस आना पड़ता है। ठीक है, कुछ पुलिस क्लियरेंस होती है, कुछ वीजा स्टेटस चेंज होने के प्रोसेसेस होते हैं, तो उसके लिए उसको वापस आना पड़ता है। यहाँ पे जो आप कंपनी में जॉब करोगे ना, वही खुद रिस्पॉन्सिबल होगी आपके वीजा के स्टेटस को चेंज करने के लिए, राइट? आपको जॉब मिल सकती है, नो प्रॉब्लम है। जी ठीक है सर। तो आप पीएचडी किस फील्ड में करें सर? सॉरी, पीएचडी आप किस फील्ड में करें? आपका मेजर पीएचडी? मेरा मेजर है माइक्रो मेकाट्रॉनिक्स। मैंने 3 चीजों पे काम किया है। एक सॉफ्ट रोबोटिक्स पे, जब हमने इस फ्रॉग पे काम किया था, पानी में इसको सॉफ्ट वे में दौड़ाया था, एक प्रोजेक्ट वो था मेरा। सॉफ्ट रोबोटिक्स पे 3 पब्लिकेशंस हैं हमारी। उसके बाद मेरा दूसरा जो प्रोजेक्ट था प्रोफेसर के साथ, वो था आर्गन ऑन अ चिप, यानी बायो सेंसर्स। आर्गन ऑन अ चिप में बायो वाले लोग काम करते थे, मैं बायो सेंसर्स पे रियल टाइम मॉनिटरिंग करता था, यानी सेंसर्स की फैब्रिकेशन भी करता था, सिंथेसाइज भी करता था, और उन्हीं पे जब हम टेस्टिंग करते थे बायो के कुछ इनालाइट्स की, ठीक है, वो बायो वालों का, केमिस्ट्री वालों का पर्पस होता था। हमारा सिर्फ ये होता था कि मीडिया जब मेरे सेंसर को लगे तो वो वोल्टेज वेरिएशन सॉफ्टवेयर पे किस तरह दे। तो LabVIEW बेस्ड हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अपनी एप्लीकेशन है हमारी वो, जो कि कमर्शियली हम बेचते भी हैं यहाँ पे एज अ कंपनी के, जिनको चाहिए होती है। कोरिया के अंदर हमारा प्रोफेसर वो डीलिंग करता है, बिजनेस भी करता है इस हवाले से, तो वहां पे वो चीज चल रही होती है। तो आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें मेरे एंड पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट LabVIEW बेस्ड, और वो जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग में कर रहा हूँ वो किस चीज की कर रहा हूँ, यानी सेंसर्स की कर रहा हूँ, उनकी फैब्रिकेशन या कैरेक्टराइजेशन मेरा काम होता था। और तीसरा प्रोजेक्ट था हमारा मेम्ब्रेन वाटर प्यूरिफिकेशन का, राइट? ये 3 प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है। So thank you much for the session. आपने तो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम का बताया, क्या साउथ कोरिया में बैचलर्स के लिए भी ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को? यस, बैचलर्स के लिए भी करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप 5% भी नहीं है। आपको पेड कोर्सेज पे आना होगा। जैसे आपने बैचलर्स मेहरान में, कायदे अवाम में, सिंध यूनिवर्सिटी में करते हो ना, फीस पे करके, तो इसी तरीके से आपको फीस पे करके आना पड़ेगा बैचलर्स के लिए। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है पाकिस्तानीज के लिए? 5% है, उसमें बहुत ही हाई रिस्क होता है, मतलब शॉर्टलिस्ट होने का, मतलब शॉर्टलिस्ट ना होने का ना, बहुत ही मतलब कठिन तरीका है। और आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको रिकमेंड करूं किसी को भी कि वो बैचलर्स करने इधर आए, क्योंकि वो बैचलर्स की जो डिग्री है ना वो पूरी कोरियन में है, ठीक है, तो आपके काम की नहीं है। हाँ, जहन बना के आते हो तो पाकिस्तान से ही पहले कोरियन सीखो, 3 महीने का कोर्स करो अपना, कराची, इस्लामाबाद या लाहौर में किसी इंस्टीट्यूट से, फिर बैचलर्स करने इधर आओ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। रिकमेंड नहीं करूंगा कोरिया के अंदर, नो। आपकी मर्जी है, वो कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। So as we have reached our time limit, we will be concluding our session today here. So first of all, let me thank you so much, Sir Fidausan, for your precious time and guiding us all about all the things related to scholarship in Korea. Thank you so much for your time. And secondly, all the members, thank you so much for your presence. लास्ट में मैं आप सब मेंबर्स को ये बता दूं, अगर वो 1 मिनट रह गया है तो आप मेरे साथ, वो मैं क्या करता हूं कि अली बख्श को मैं अपने डिटेल्स भेज देता हूं, ईमेल हो गई या फेसबुक पेज भी है ना मेरा, तो वहां पे आप राब्ता कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर पाया टाइम लिमिट की वजह से, वो वहां पे पुट कर दे, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगा। श्योर सर, हम इनके साथ ये पीपीटीज वगैरह भी शेयर कर देंगे, और जो भी आपकी डेटा है हम इनके साथ शेयर कर देंगे। ये पीपीटी जो है ना शेयर करने के लायक नहीं है। मैं आपको जो लिंक भेज रहा हूँ ना, एम्बेसी ऑफ साउथ कोरिया इन पाकिस्तान वाली, उसमें ये तीनों पीपीटीज बनी हुई हैं। डोंट वरी, वहां से आपको मिल जाएंगे अच्छे फॉर्मेट। ये भी ठीक है सर, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर हम मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। फिर से सिंधी में बड़ी बड़ी मेहरबानी, लखत हो रहा। मुझे फर्ज है, एनी टाइम मुझे फर्ज है, माय ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सी यू सून।